آج کی ویڈیو ایک ایسی کہانی پر مبنی ہے جو پرانے زمانے کی ہے، لیکن اس میں چھپے سبق اور حیرت انگیز موڑ آپ کو آخر تک مشغول رکھیں گے۔ یہ کہانی انسان کی دعاؤں، صبر اور مشکلات کا سامنا کرنے کی زبردست مثال پیش کرتی ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں احمد نام کا ایک کسان اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد ایک خدا ترس انسان تھا جو انتہائی سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد گاؤں کی مسجد میں خدا سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے 7 بیٹوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہوں تاکہ ہمارا خاندان مضبوط اور متحد رہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن احمد اپنی دعا میں مایوس نہیں ہوا۔ ہر دن اس کی امید بڑھتی گئی۔ وہ سوچتا تھا کہ جب اللہ یہ دعا قبول کرے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک اور گاؤں تھا جہاں اکبر نام کا ایک اور کسان اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اکبر بھی احمد کی طرح خدا کا نیک بندہ تھا۔ وہ بھی روزانہ نماز کے بعد یہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میری تمام بیٹیوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہوں تاکہ میری بیٹیاں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ اکبر کی دعا بھی اتنی ہی پرخلوص تھی جتنی احمد کی۔ دونوں کسانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی دعائیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور قسمت ان کے راستے خود ہی ملا دے گی۔ ایک دن کچھ رشتہ کروانے والے لوگ احمد کے گاؤں آئے اور ان کے بیٹوں کے لیے مناسب رشتے ڈھونڈنے لگے۔ وہ احمد کے پاس آئے اور کہا، ہم نے ایک گاؤں میں 7 بیٹیاں دیکھی ہیں، وہ بہت خوبصورت، نیک اور تمہارے بیٹوں کے لیے بہت ہی موزوں ہیں۔ ان کے والد بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب بیٹیوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہوں۔ یہ سن کر احمد کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسی وقت اکبر کے پاس بھی وہی لوگ گئے اور احمد کے بیٹوں کا ذکر کیا۔ اکبر بھی فوراً راضی ہو گیا اور دونوں خاندانوں نے رشتہ طے کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب شادی کی تاریخ قریب آئی تو دونوں خاندانوں میں خوشی کا سما تھا۔ احمد کے بیٹے بھی بہت خوش تھے، خاص طور پر سب سے بڑا بیٹا دم، جو کہ ایک بہادر، نڈر اور سمجھدار نوجوان تھا۔ شادی کے دن دم نے تمام بھائیوں اور باراتیوں کو نصیحت کی، دیکھو راستے میں جہاں رات رکنا پڑے واپسی پر وہاں مت رکنا، کیونکہ یہ جگہ ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتی۔ بارات بڑی دھوم دھام کے ساتھ روانہ ہوئی۔ راستے میں جب رات ہوئی تو ایک قدیم درخت کے نیچے قیام کیا گیا۔ یہ جگہ ایک فقیر کی تھی اور اس کے بارے میں کئی پراسرار باتیں مشہور تھیں۔ رات کے وقت وہاں کا ماحول عجیب اور خوفناک لگ رہا تھا، لیکن تھکن کی وجہ سے سب وہیں رک گئے۔ صبح ہوئی تو سب نے دوبارہ سفر شروع کیا اور اکبر کے گاؤں پہنچے۔ وہاں نکاح کی رسومات ادا کی گئی اور 6 بیٹیاں خوشی خوشی اپنے سسرال روانہ ہو گئیں۔ سب سے بڑی بہن جس کا نکاح نہیں ہوا تھا کیونکہ دم بارات کے ساتھ نہیں آیا تھا، اسے چھوٹی بہنوں نے مذاق کا نشانہ بنایا۔ یقیناً تمہارا شوہر معذور، اندھا یا لنگڑا ہوگا، اس لیے نہیں آیا۔ یہ سن کر بڑی بہن مسکرا کر بولی، جیسا بھی ہوگا میں اسے دل و جان سے قبول کروں گی۔ واپسی کے دوران بارات دوبارہ اسی فقیر کے درخت کے نیچے رکی۔ حالانکہ دم نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، لیکن تھکن اور لاپرواہی کی وجہ سے سب وہیں قیام کر گئے۔ صبح ایک باراتی نے حاجت کے لیے باہر جانا چاہا، لیکن اس نے دیکھا کہ ہر طرف لوہے کی 4 دیواریں بن گئی ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک پراسرار آواز آئی، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ سن کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ بارات کے لوگ اب دم کو یاد کرنے لگے، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب دم تک یہ خبر پہنچی وہ فوراً درخت کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی لوہے کی 4 دیواری نے بارات کو قید کر رکھا ہے۔ دم نے بسم اللہ پڑھ کر دیوار کو ٹھوکر ماری اور وہ غائب ہو گئی۔ فقیر کی آواز آئی، سب لوگ جا سکتے ہیں، لیکن دم تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ دم نے فقیر سے کہا، حکم کریں۔ فقیر نے کہا، مشرق کی سمت ایک عورت رہتی ہے جس کے بال سونے کے ہیں، اسے میرے پاس لاؤ ورنہ تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ دم نے سفر شروع کیا جو انتہائی خطرناک تھا۔ راستے میں اسے کئی عجیب و غریب لوگ اور مخلوقات ملی۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کنویں سے پانی نکال کر اپنی بھینسوں کو پلا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ دم نے اس سے سلام دعا کی اور آگے بڑھ گیا۔ دم نے کئی دنوں کے بعد سونے کے بالوں والی عورت کو ڈھونڈا اور فقیر کے پاس لے آیا۔ فقیر نے کہا، تمہاری بہادری اور عزم نے تمہیں کامیاب کیا، اب تم جا سکتے ہو۔ دم بارات کے ساتھ واپس اپنے گاؤں پہنچا جہاں سبھی نے اس کی ہمت کی داد دی۔ دم نے کہا،
सीधे तरीके से सलाम तो ले लो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। उस आदमी ने जवाब दिया, पहले मैं अपनी भैंस नहला लूं, फिर पूछ लेना। जब वो फारिग हुआ तो दम ने अपनी कहानी सुनाई और पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस शख्स ने कहा, मदद तो यही कर सकता हूँ कि उस औरत को ढूंढने में तुम्हारे साथ चल पड़ूं। दम और वो आदमी आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था। वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, कभी जमीन पर पेट के बल लेट जाता और कभी खड़ा हो जाता। दम ने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अपनी हरकतें जारी रखी। दम ने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो? कभी लेट जाते हो, कभी खड़े हो जाते हो। चरवाहे ने जवाब दिया, यहाँ से 100 कोस दूर मेरी बहन की शादी हो रही है, वहाँ नाचने वालियों का डांस हो रहा है। जब लोग खड़े हो जाते हैं तो मैं लेटकर उनकी टांगों के दरमियान से देखता हूँ, और जब लोग बैठ जाते हैं तो मैं खड़ा होकर देखता हूँ। दम को अंदाजा हो गया कि इस चरवाहे की नजर इंतहाई तेज है। बाद में चरवाहे ने दम से पूछा, कहाँ से आए हो? दम ने अपना गांव और अपने वालिद का नाम बताया। ये सुनकर चरवाहा बोला, तुम्हारा वालिद मेरे वालिद का गहरा दोस्त था, इस नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब दम, भैंस नहलाने वाला और चरवाहा तीनों साथ चलने लगे। आगे चलकर उन्होंने एक शिकारी को देखा जो कि कबूतर पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। दम ने उसे सलाम किया और अपनी कहानी सुनाई। शिकारी ने कहा, पहले अपना तारुफ करवाओ। जब दम ने अपना गांव और वालिद का नाम बताया तो शिकारी बोला, तुम्हारा वालिद मेरे वालिद का गहरा दोस्त था, 2 कबूतर पकड़ने दो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 2 कबूतर पकड़ने के बाद शिकारी भी उनके साथ चल दिया। अब चारों साथ थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। दम ने चरवाहे से कहा, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है, देखो आसपास कोई कुआं है? चरवाहे ने कुछ देर देखने के बाद कहा, यहाँ से 80 कोस दूर एक कुआं है, वहाँ पानी की रफ्तार तेज है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि रेवड़ को चलाने वाले जानवर कौन से हैं। जब वो कुएं पर पहुंचे तो देखा कि जानवर दरअसल सूअर थे। दम के साथियों ने कहा, हमारे मजहब में सूअर हराम है, हम इनका निकाला हुआ पानी नहीं पिएंगे। दम ने सूअरों को हटाया और खुद रहट चलाकर पानी निकाला। सबने पानी पिया। चूंकि सूअर आजाद हो चुके थे, रहट रुक गया था। इससे खेतों में पानी कम हो गया। खेतों का मालिक फिक्रमंद होकर आया और बोला, तुमने मेरे सूअर क्यों छोड़े? दम ने कहा, मेरे साथियों ने इनका निकाला हुआ पानी नहीं पिया, इसलिए मैंने इन्हें आजाद कर दिया। ये सुनकर खेतों के मालिक ने पूछा, कहाँ से आए हो? जब उसे दम के वालिद का नाम पता चला तो वो भी कहने लगा, तुम्हारा वालिद मेरे वालिद का दोस्त था, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब 5 लोग साथ थे। रास्ते में उन्हें भूख लगी तो उन्होंने शिकारी से कहा, तुम्हारे पास 2 कबूतर हैं, उन्हें भून कर खा लेते हैं। शिकारी ने कबूतरों को ज़िबा किया, लेकिन आग की जरूरत थी। दम ने चरवाहे से कहा, तुम्हारी नजर तेज है, आग ढूंढो। चरवाहे ने देखा और कहा, दूर आग जल रही है, लेकिन वहाँ कोई अजीब चीज भी है। दम ने भैंस नहलाने वाले को आग लेने भेजा। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक बहुत बड़ा देव आग के करीब बैठा है। जैसे ही उसने जलती लकड़ी उठाई, देव ने उसे पकड़ लिया और नीचे दबा दिया। बाकी साथी इंतजार करते रहे। जब भैंस नहलाने वाला ना लौटा तो उन्होंने पानी वाले को भेजा। उसका भी यही हाल हुआ। जब चरवाहे और शिकारी को भेजा, कोई भी न लौटा। आखिर दम खुद गया। वहाँ पहुंचकर उसने देव को देखा और फौरन उसे दबोच लिया। देव ने मज़ाहमत की, लेकिन दम ताकतवर था। दम ने अपने साथियों को आजाद किया और देव को जोर से दूर फेंक दिया। देव माफी मांगने लगा और उनके साथ चलने की इजाजत मांगी। दम ने उसे इजाजत दे दी और सब आगे बढ़ गए। दुकानदार शोर मचाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं लुट गया, ये बला तो मेरी पूरी दुकान उठाकर ले जा रही है। ये देखकर लोग मदद के लिए दौड़े। शहर के लोग जमीन से पत्थर उठाकर देव को मारने लगे, मगर देव पर उसका कोई असर न हुआ। उसके लिए ये पत्थर रेत के जर्रों की मानंद थे। देव खामोशी से दुकान उठाकर चलता रहा। जब लोगों ने देखा कि देव पर उनकी कोशिश बेअसर है तो वो बादशाह को बुलाने दौड़े। बादशाह आया और देव के सामने खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश की। देव ने जमीन पर अपना पांव खींचकर एक गड्ढा बनाया और बादशाह को उठाकर उस गड्ढे में खड़ा कर दिया। फिर उसे सीने तक मट्टी में दबा दिया। बादशाह आजारी करने लगा और मिन्नत समाजत करते हुए बोला, मेरी 4 बेटियां हैं, तुम उनसे शादी कर लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। देव ने कहा, तुमने वादा किया है, अब इस पर कायम रहो। ये कहकर उसने बादशाह को जमीन से निकाला और कहा, फौरन अपनी बेटियों को लेकर मेरे दोस्तों के पास भेजो। बादशाह ने नाई को भेजकर अपनी 4 बेटियों को जंगल में देव के पास पहुंचा दिया। वहां देगे पकने लगी। देव और उसके साथी एक देग से ही सेर हो गए, मगर बाकी देगे भी देव ने खा डाली। फिर भी उसका पेट न भरा।
इतने में बादशाह अपनी बेटियों को लेकर वहां पहुंच गया। देव के दोस्त ने कहा, तुमने वादा किया था कि कोई शरारत नहीं करोगे, ये सब क्या है? देव ने जवाब दिया, ये मेरी कोई शरारत नहीं है। उसके बाद उसने तमाम माजरा कह सुनाया। घोड़े पर सवार आधी मछली जमीन पर घिसटती जा रही थी। मछेरे ने जैसे ही अपने घर का रुख किया, मछली जमीन पर घिसटती हुई साथ चलती रही। घर पहुंचकर मछेरे ने मछली का पेट चाक किया। जैसे ही पेट खुला, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मछली के पेट के अंदर सुनहरे बाल चमक रहे थे। उसने फौरन वो बाल निकाले और अपनी बीवी को दिखाए। बीवी भी हैरत में पड़ गई। दोनों मियां बीवी ने मशवरा किया कि इन बालों का क्या किया जाए। बीवी ने कहा, इन्हें फौरन बादशाह के दरबार में ले जाओ, वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। मछेरा खुशी खुशी दरबार की तरफ रवाना हुआ। दरबार पहुंचकर बादशाह को सलाम किया और सुनहरे बाल पेश किए। बादशाह बाल देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन अपने शाही नजूमी को तलब किया और हुक्म दिया, मालूम करो कि ये बाल किसके हैं। नजूमी ने कुछ वक्त हिसाब किताब किया और कहा, हुजूर, ये बाल किसी इंतहाई हसीन औरत के हैं। वो औरत इतनी खूबसूरत है कि ये महल उसके आने से जगमगा उठेगा। बादशाह के दिल में हसीना की आरज़ू जाग उठी। उसने मछेरे से सख्ती से पूछा, ये बाल कहाँ से लाए हो? अगर सच न बोला तो सर कलम कर दिया जाएगा। बेचारा मछेरा जो इनाम का ख्वाब लेकर आया था, अब मुश्किल में फंस गया। उसने कसम खाकर कहा कि ये बाल एक मछली के पेट से निकले हैं, लेकिन बादशाह को यकीन न आया। उसने गुस्से में मछेरे का सर कलम कर दिया। हंसते हंसते वो दम से कहने लगी, बेटा, मैं कुर्बान जाऊं, एक बात तो बताओ, क्या तुमने मरना भी है या मरने का कोई इरादा नहीं है? दम मुस्कुराकर बोला, मेरी मौत का वक्त और तरीका सिर्फ रब जानता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब मेरी तलवार को जंग लगेगा तब मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये राज जानने के बाद कुटनी एक शैतानी चाल सोचने लगी। वो जंगल गई और वहां से जंगलों का गोबर एक चादर में छुपाकर घर ले आई। उसने गोबर को खुश्क किया और जलाया और उसकी राख बना दी। फिर उसने दम की चमकती हुई तेज धार तलवार चुपके से चुरा ली और उस पर राख मल दी। लोहा राख के साथ जल्दी जंग आलूद हो जाता है, और यही हुआ। जैसे ही तलवार पर जंग लगना शुरू हुआ, दम की हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोशी के आलम में चला गया। एक दिन कुटनी और सुनहरे बालों वाली औरत दरिया किनारे कपड़े धोने गईं। वहां उन्हें एक शानदार और खूबसूरत जहाज नजर आया। सुनहरे बालों वाली औरत ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा शानदार जहाज देखा था। वो हैरानी और इश्तियाक से उसे देखने लगी। कुटनी की मक्कारी फिर उरूज पर थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आओ, आज हम दोनों माँ बेटी अंदर जाकर इस जहाज को देखें। बाहर से तो ये शानदार लग रहा है, लेकिन अंदर देखें तो यकीनी तौर पर ये और भी खूबसूरत होगा। सुनहरे बालों वाली औरत उसकी बातों में आ गई और जहाज की तरफ चलने लगी। कुटनी दिल ही दिल में अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ हो ली। दोनों जहाज में दाखिल हो गईं। सुनहरे बालों वाली औरत जहाज की अंदरूनी आराइश देखकर दुनिया हो माफिया से बेखबर हो गई और हैरत में डूब गई। कुटनी ने सुनहरे बालों वाली औरत को एक चारपाई पर बैठा दिया। उसने पहले ही मल्लाह को बता दिया था कि जैसे ही हम दोनों जहाज में बैठे, तुम लंगर उठा देना। मल्लाह ने ऐसा ही किया और जहाज दरिया की लहरों पर चलने लगा। चूंकि जहाज का डिजाइन ऐसा था कि ना तो खड़ा होने वाले का पता चलता है और ना ही चलते हुए का, इसलिए सुनहरे बालों वाली औरत को ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो सतह से बुलंद होकर चल रही है। कुटनी ने बातों में उलझा लिया और कहा, बेटी, जहाज अंदर से कितना ठंडा और आरामदेह है। हम यहाँ कुछ देर बैठकर आराम करते हैं। चंद लम्हों के बाद जब वो जहाज से बाहर निकली तो सुनहरे बालों वाली औरत की आंखें हैरत से फैल गईं। वो पुकार कर बोली, अम्मी, ये जगह तो कुछ और है, ये वो जगह नहीं है। कुटनी मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं बेटी, तुम गलत कह रही हो, ये वही जगह है, मैं पागल नहीं हूँ। मगर सुनहरी बालों वाली औरत अब बेचैन हो गई और जिद करने लगी, तुम मुझे किसी और जगह ले आई हो, मुझे वापस छोड़ाओ। उस पर कुटनी गुस्से में आ गई और जहाज के नौकरों को हुक्म दिया, इसे उठाओ और राजा के पास ले चलो, देखती हूँ अब ये कैसे बचती है। नौकरों ने फौरन उस पर अमल किया और एक ताकतवर नौकर ने सुनहरे बालों वाली औरत को उठाकर अपने कांधे पर रखा। वो बेजार होकर हाथ पांव मारने लगी और चीख पुकार करने लगी, मगर कुछ भी न हो सका। उस नौकर ने औरत को राजा के दरबार में ले जाकर उसके सामने उतार दिया। राजा ने उस औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दिल में सोचने लगा, क्या ये जन्नत से आई कोई परी है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी हसीन औरत नहीं देखी। राजा फौरन दिल की बात जुबान पर ले आया और कहा, ऐ खूबसूरत लड़की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सुनहरे बालों वाली औरत ने जब अपने आप को इस तरह बेबस पाया तो कुटनी की हकीकत का फिर से इदराक किया
और अपनी बेवकूफी पर बहुत अफसोस हुआ, मगर अब अफसोस करने से क्या होता। अब जो हो चुका था उसका कोई फायदा नहीं था। उसने खुद को संभाला और राजा के सवाल का जवाब दिया। मेरे साथ एक वादा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। राजा ने पूछा, क्या वादा है? औरत ने जवाब दिया, जब तक मेरे कपड़े नहीं फटते मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती। राजा खुश होकर बोला, ये मुझे मंजूर है, क्योंकि कपड़े तो एक दिन फटते ही है और जब वो फट जाएंगे हम शादी कर लेंगे। राजा ने दिल में सोचा कि ये तो बस एक वक्त की बात है, देर या सवेर कपड़े फट ही जाएंगे, वो चाहे 1 महीने के बाद हो या फिर 2 महीने के बाद। इस तरह सुनहरे बालों वाली औरत ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की और अच्छे वक्त का इंतजार शुरू कर दिया। उधर सुबह का वक्त हो चुका था। देव ने आंखें मलकर उठने की कोशिश की और जैसे ही वो चलने लगा उसका पैर एक जगह पर पड़ा जहां कुटनी ने दम की तलवार राख में छुपाई हुई थी। देव ने तलवार निकाली और देखा कि वो जंग आलूद थी। देव जानता था कि उस तलवार में दम की ताकत है। उसने तलवार को हाथ से रगड़ना शुरू किया ताकि जंग उतर जाए। जैसे जैसे जंग उतरने लगा दम का जिस्म हरकत करने लगा और तलवार चमकने लगी। दम मुकम्मल होश में आकर बैठ गया। देव ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर जब उसे सुनहरे बालों वाली औरत कहीं नजर नहीं आई तो उसने दम से पूछा, वो औरत कहाँ गई? दम ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी माँ आई थी, वो कहती थी कि मैं तेरी माँ हूँ, शायद वो उसे कहीं ले गई हो। देव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसका पता करता हूँ। फिर देव हवा में उड़ते हुए उस बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया जहाँ सुनहरे बालों वाली औरत को कैद किया गया था। देव महल के करीब पहुंचा, वहाँ एक कौवा बनकर दीवार पर बैठ गया। सुनहरे बालों वाली औरत फौरन समझ गई कि देव उसकी मदद करने आया है। वो सहन में आई और कौवे को इशारे से नीचे आने को कहा। कौवा दीवार से उड़कर औरत के पास आ बैठा। औरत ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? कौवे ने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है। औरत ने कुछ खाना लाया और कौवे ने फौरन सब खा लिया। कौवे ने कहा, अब तक मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मजीद खाना चाहिए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ महल में एक कमरा है, वहाँ खाना है, तुम वहाँ जाकर खाओ। कौवे ने कहा, मैं तैयार हूँ, जब बादशाह राजी हो जाए तो मुझे बताना। फिर देव ने वही किया जो औरत ने कहा था। बादशाह शादी के लिए तैयार हो गया और सुनहरे बालों वाली औरत ने उसके मुताबिक सब खवातीन को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर देव ने आकर कमरा उठाया और उसे हवा में उड़ाता हुआ जंगल में ले आया जहां उसका दोस्त दम और सुनहरे बालों वाली औरत रहते थे। देव ने कमरा दम के सामने रखा और दरवाजा खोल दिया। अंदर से कुटनी और बाकी औरतें खौफ के मारे निकलकर भागने लगी। देव ने कुटनी को खा लिया और बाकी औरतों को दोबारा कैद कर दिया। इसके बाद देव ने कहा, अब वापस चलें, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हें खुशी से जिंदगी गुजारने की दुआ देता हूँ। फिर वो दोनों उस बूढ़े फकीर के पास पहुंचे जहां फकीर ने कहा, तुम्हें सुनहरे बालों वाली औरत को अपनी बीवी बनाना पड़ेगा। और दम ने इस बात को तस्लीम किया। बेचारी औरतें जो रोजाना मिजाहिया बातों और ताने सुनकर तंग आ चुकी थीं, अपने ससुराल से वापस मैके आ गईं। वो ये सोचकर आईं कि अगर मेरा शौहर मुझे चाहे तो वो मेरी तकदीर बदल सकता है। जब उसे अपने शौहर का प्यार नहीं मिला तो उसने सोचा कि यहाँ रहकर क्या फायदा। जब दम को इस बात का पता चला तो वो फौरन अपनी बीवी के ससुराल में गया। बीवी ने जब अपने शौहर को और उसके 7 भाइयों को देखा, हकीकतन सब्र का फल मीठा होता है, और फौरन उसने दूसरी शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दम अपनी बीवी को लेकर घर आया जहां सुनहरे बालों वाली औरत उसका इंतजार कर रही थी। दम ने अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाजत मांगी। वो इतनी खुश थी अपने शौहर से मिलकर कि फौरन बोल उठी, मैं रजामंद हूँ, तुम इससे भी शादी कर लो, हम दोनों मिलकर खुशी से जिंदगी गुजारेंगे।